Today we are going to revise numerical which is based on the numeric comparator, right? Okay, so let me share that screen. Okay, let me share that screen so that you will get the formula and we can find the result. Okay, sir. So just a minute. I'm going to share that. Okay. Yes. Come to this. सर वो न्यूमेरिकल हमें कॉपी में भी करना है अभी? Yes. Open your copies. Yes, take your copy with you. ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसे कैसे होगा? ठीक है। ओके, कीप योर कॉपी विथ यू। सर मुझे लगा आप समझाओगे। अरे नो, फिर वैसे कोई मतलब नहीं होगा। ओके, ठीक है सर। सो टेक योर I'm requesting you all to please keep your copy along with you. Okay, so that we will solve numerical. Yes sir, निकाल दिया मैंने तो। Okay, so once you all will take, let me tell you. Let me tell whether you have carried your copy with you or not. So this numerical is very important for the aspect of the examinations. If it will ask, it will be asked in minimum 12.5 marks. Okay, so this is only the numerical that is important. Okay, so I'm asking all of you, do you have your copy and pen? Kaustubh? Yes sir. Abhishek, copy pen ले लिए? Yes sir, ले लिया। अंशुल वर्मा? हिमांशु? Yes sir। Copy pen हो गया? Okay, Rishabh, do you have your copy and pen? Do you have notepad and pen? Okay, Shubham Chunal. Okay, please write down. Yes sir. Yes, please write down the characteristic curve, the characteristic equation. सर आपके वॉइस ब्रेक हो रही है सर मुझे। Okay, 1 minute please. हेलो। Yeah. Hello. Let me send the photographs in your group. Okay, so that you will be comfortably see this. Okay. Is it right? Just 1 minute, please. I'm sending you that photographs. Okay. Yes. I already sent it in your group. Okay. Go through it. It is visible to all. I already sent in your WhatsApp group. Yes sir, मिल गया। Do you have that questions? Okay, this is very important. See what that question is telling. The characteristics equation for the numeric comparator is represented by P by P. Is represented by small p upon capital P is equal to 1.1 minus 0.5 m by c. Right? The curve is linear in the range of small p by p is equal to 0.6 to 0.8, and diameter of control orifice DC, diameter of control orifice is equal to 0.5 mm, and diameter of measuring orifice is 1 mm. If indicator sensitivity is 30 mm per 1 kilonewton per meter square, determine range of linear measurement, and secondly we have to find out the overall magnification. ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, पहले देखिए। हमने सबसे पहले आप स्लाइड्स को देखिए। स्लाइड्स अगर दिख रहा है आपको तो स्लाइड्स में देखिए। Come to the slide now. Okay, what I'm telling you, I already tell you the condition of 1% of linearity is lying between the range of 0.6 to 0.8 of p by p value. I already told you during the class. I already told you the condition 0.6
the condition where the P by P value lies in the range of 0.6 to 0.1 defines a sections of characteristics which is having the 1% linearity. Okay, see this diagram. We are only considering the range that has been given 0.6 to 0.1, and in between this range, the linearity is considered to be within 1%. Okay, I already told you the vertical line is representing the P by P and the horizontal line is representing M by C. So back to this, if you see here, okay, so what is this equation? Equation is the small p upon capital P is equal to A minus B into M by C. So P by P is equal to what? P by P is equal to what? You have remembered or forget? That is pressure. You know, see this diagram. See this diagram. It is visible to all of you. The pressure when it Yes, comes, sir. the pressure, see this diagram, the pressure when it comes from the source, that is capital P, and the pressure between these two orifices, one is the control orifice, another one is the measuring orifice. See, this is the nozzle, where nozzle is fitted, this is the measuring orifice, and this is the control orifice. So diameter has been given in both cases, control orifice and the measuring orifice. So the pressure between the control orifice and measuring orifice is equal to the a small p. What I said, a small p. And what is M by C? What is M by C? M is the geometrical shape for the measuring heads, and the C is the geometrical area of what? Control orifice. You are getting or not? You are getting or not? सर एक बार दोबारा बता दो. See this diagram. What I said you, the characteristics equations of pneumatic comparator is what? A small p upon capital P is equal to A minus B into M by C, right? Okay. So what I said you, the value of A is always taken 1%. For the 1% of linearity, the value of A is always considered, for the 1% of linearity, value of A is always considered 1.10, right? Always consider the value can be adopted 1.10. And what I'm telling about the small p and the capital P, a small p, the pressure between the two orifices. Means the control orifice, the pressure between the control orifice to the measuring control orifice here, control orifice to the measuring hose. This pressure is a small p, and when the pressure comes from the source or the compressor, then before entering into the control orifice, the pressure become capital P. You got it? You got it? Yes, sir. So this is the condition. This is the condition. So what our questions have given? Our questions have given the characteristic equation of pneumatic comparator, that is P by P is equal to 1.1 minus 0.5 M by C, and 0.5 is what? This is B. Okay, this is what? The value of B. Okay, and you see the range has been given. The range of P by P has been given between the 0.6 to 0.8 for the 1% linearity. So B is equal to what? B is equal to the slope of the curve. B is equal to what? Slope of the curve. B is the slope of the curve, where we can get the value of 1% linearity, that is the value of A is equal to 1.10. If you see the curve started from 1.10, and in the range of 0.6 to 0.8, it become the 1%. I already have discussed all those things during the classes, okay? Right? So what I said to you, see this diagram, see these slides. If you'll see here, what I said to you, we have to find out dr by dl. हमें क्या निकालना है? dr by dl निकालना है. That is what? Overall magnification. What the same thing we are doing in the other comparator, right? We are doing the same thing in other comparator. So here you will the overall magnification of the pneumatic comparator will be equal to dr upon dp. dr upon dp is what? Sensitivity of the pressure measuring device. Okay. Then dp by dm. dp by dm is what? Pneumatic sensitivity. And dm by dl, that is what? The rate of change of m with respect to the L. The rate of change of m with respect to the L. Okay. So I already told you dp by dm. What is gp by dm? Pneumatic sensitivity. This is constant over the linear range. Okay. So dr by dp. What is dr by dp? dr by dp मतलब इसका हुआ कि pressure measuring device is linear, which is usually the case. And then dm by dl.
dm by dl में क्या होगा, m changes proportionately with the l, m changes proportionally, इसलिए डिफरेंशियल निकाला गया d by dl of m, so m will changes with respect to the l. so what is the value of m, m को कैसे निकालते हैं, तो हमने बताया था कि m is equal to होता है pi dl, m is equal to क्या होता है pi dl, अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हो, हमने क्या बताया था कि d क्या है बेटे, d इज द डायमीटर, हमने क्या बताया था, सिलेंडर का लेंथ होता है l, सिलेंडर का जो लेंथ है वो l है एंड डायमीटर d है, ठीक है, और l क्या है, कैपिटल L जो है वो सेपरेशन बिटवीन नोजल, सी हियर दिस इज कैपिटल L, दिस इज कैपिटल L, separation between the nozzle head to the surface being tested, okay, so this is what L, capital L, इसलिए हम लोग निकालते हैं m dm by dl is equal to pi d होता है, which is constant, which is constant. हमने आपको बता ही दिया था कि ma कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू हमने तीन चीजें बताया था, mx बताया था, see here, I'm going to memorize you, see here in this diagram what I said you, here you will see what we find out, mx by mn, हमने क्या बताया था, यहाँ देखिए we are going to allocate the area that is started from 0.8 and it is falling on the vertical lines में देखिए आप mn है, then क्या है mc है, okay, and then क्या है mx है, okay, so जो आप देख रहे हैं बीच वाला, जो आप देख रहे हैं बीच वाला क्या है, एवरेज वैल्यू है, that is what the ma by c, ma by c मतलब क्या होगा, एवरेज, मतलब 0.8 to 0.6 का एवरेज क्या हुआ 0.7, और 0.7 से जो देखिए वर्टिकल लाइन m by c के ऊपर गिरा है वो क्या है. So come to the numerical first, okay, more I will explain there, okay, so see here, only you will see the diagram over here, from where you can use, okay, so the characteristic equation of pneumatic comparator has been given, that is what we have, a small p upon capital P is equal to 1 minus 0.5 m by c, right? So what we are going to find out, kindly do the same, putting the linear range in the equation, okay, you are getting, students, you are getting, अभिषेक सर इसमें डिफरेंशिएट किसको किया है ये समझ नहीं आया, वो बेटे मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे डिफरेंशिएशन किया गया है, क्या क्या एल होता है, क्या डी होता है, ठीक है, उसको हम आपको सेपरेटली बताएंगे अगर समझ में नहीं आएगा तो, अभी जितना करा रहा हूँ उतना करिए न्यूमेरिकल के लिए, ओके, अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आई विल एक्सप्लेन यू मोर सेपरेटली, ओके, so just now I'm telling you to learn what equation we have, characteristic equation of the pneumatic comparator we have, a small p upon capital P is equal to what, 1.1 minus 0.2 m by c, right? You got it? Okay, what we are going to do, yes sir, now please write, putting the linear range in the equation, what we will do, the linear range of the equation is what, 0.6 to 0.8, 0.6 to 0.8, तो एक बार क्या करेंगे, p by p का वैल्यू रखिए 0.6 रख के लिखिए 0.6, p by p is equal to 0.6, ये already we are knowing 1.10, okay, minus b already we have 0.5, okay, and m by c we are looking for m by c, so what m by c हमने क्या बताया था कि वो वैल्यू किसके बराबर होता है, पाई dl के वैल्यू होता है, m की वैल्यू क्या होती है, m is equal to what, मेजरिंग ओरिफिस का जो डायमीटर होता है, always kept at the pi dl, so we are keeping the keeping the subscript m for the what, measuring orifice, so you will put like this 0.6, got it, 0.6 is equal to 1.1 minus b का वैल्यू अपने पास दिया हुआ है 0.5 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेजरिंग हेड्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पाई dl, सो पाई dl इज व्हाट, आप देखिए 0. आप ग्राफ सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, आप ग्राफ में देखिए आप 0.6 पे वैल्यू कितना आ रहा है, आप देखिए इस स्लाइड को मैंने पीछे किया है, आप देखिए 0.6 पे वैल्यू कितना आया है, आप देखिए इस ग्राफ में 0.6 पे जो वैल्यू आया है वो मैक्सिमम वैल्यू आया है, इसीलिए लिखा है उन्हें पाई d become dm because we are talking about the measuring heads and m become l become maximum, देख रहे हैं ना 0.6 का मैक्सिमम लेंथ मिल रहा है, we are getting the maximum length at the value of 0.6, so what will be pi dm l maximum upon
C is what? Control orifice diameter, and control orifice diameter, that will be the cylindrical. So what will be the diameter? Pi by 4 dA square. So what will be happen? What will be the subscript here? Pi by 4 dCA square. यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. हमने क्या बताया बेटे? हमारे पास इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन we already have. P by P is equal to 1.1 minus 0.5 m by c. That has been given. Okay, so we are knowing the 1% linearity range is what? 0.6 to 0.8. Okay, so we are going to put the value in the place of the P by P. So once we are going to put the 0.6 value, so the will become the maximum. So what I told you, what is the measuring orifice diameter? So measuring orifice diameter is represented by m, and control orifice diameter is represented by the c. Okay, so measuring हमेशा याद रखिएगा, measuring head diameter become pi dl, और because d become the measuring head, इसलिए d के पास क्या, d को क्या लिख दिया हमने, dm लिख दिया, और l become the maximum value. You will see the graph 0.6 पे जो length of cylinder है वो maximum हो रहा है. So l become the l maximum. So क्या हो जाएगा, pi dm l maximum upon d upon c. What is the control orifice diameter? That diameter is equal to the pi by 4 dA square. That become the pi by 4 dA square. You got it? Kaustubh? Yes, sir. You got it or not? Yes, sir. In short, you have to remember these things. I already explained in the class all the aspects, from where L is varying, how DL is constant, and how do we find out these three multiples, pneumatic sensitivity as well. सारा कुछ बता चुका हूँ. So just stick to the numerical, and moreover, what we'll put, we'll simply put for the others. दूसरा बताइए, कौस्तुभ आप बताइए, दूसरा क्या हो जाएगा? The second range is equal to 0.8. So 0.8 पे हमको इक्वेशन लिख के बताइए. What that equation become? Yes. Write equation 1. 0.6 वाला 1 मान लीजिए. Okay. And let other equation be 2. So 0.8 is equal to 1.1 minus 0.5. यहाँ क्या हो जाएगा? Same हो जाएगा. Pi dm L minimum. See this diagram. 0.8 पे जो m by c की वैल्यू है वो क्या है? मिनिमम है. So what it become? Pi dm L minimum upon pi by 4 dCA square. You got it or not? अभिषेक सर वो पाई डीएम एल मिनिमम वाला समझ नहीं आया, बाकी तो सब समझ में आ बेटे गया. हमने क्या बताया था, हमने देखिए अब जितना आप पहले की चीजें भूल जाइए, एक बार जब पढ़ेंगे आप ना फिर उसमें समझ में आएगा. बस अभी जितना बता रहा हूँ जस्ट कीप इन द माइंड. हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? P by P is equal to 1.1 minus 0.5 m by c. अब यहाँ देखिए m क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा. m is what? m is what? Tell me. m is what? m is measuring diameter of measuring head, और measuring head कहाँ होता है? नोजल के पास. ठीक है, measuring head कहाँ होता है? नोजल के पास, जो हमारा इस डायग्राम में दिया हुआ है. हेलो Yes sir. Is it visible to all? I think slide share has been replaced, right? Yes sir. Okay. 1 minute I'm going to share. Okay, just a minute. See this diagram. Both equation have been completed, equation 1 and equation 2. What I'm trying to teach you, this is the characteristic equation that has been given. That is the characteristic equation that has been given to you. And you know, I told you what is the value of A and B value has been given. Control orifice diameter has been given, as well as apart from this control orifice diameter, as well as we have the diameter, measuring orifice diameter has been given. These things are the input for our numericals. Okay, so what we are doing, we are going to simply keep 1% of linearity. So that is the range of the 0.6 to 0.8. Okay, what I did, P by P का वैल्यू एक बार हमने क्या रखा, 0.6 रखा. 0.6 पे देखिए आपने क्या किया, m मतलब हमेशा याद रखिए कि मेजरिंग हेड का ज्योमेट्रिकल शेप है, तो वो होता है हमेशा पाई डी एल. m कितना होगा? पाई डी एल, हमेशा याद रखिए. और c कितना होगा? कंट्रोल ओरिफिस का डायमीटर है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर.
इतना याद रखेंगे। उसके बाद 0.6 पे आप देखिए, 0.6 पे आपको क्या होगा, पाई डी एल होता है, तो पाई डी एल, डी में सब स्क्रिप्ट लगा दिया हमने एम, क्यों? क्योंकि मेजरिंग हेड की बात कर रहे हैं, मेजरिंग हेड डायमीटर्स की बात कर रहे हैं। सो पाई डी एम इंटू एल मैक्सिमम। अब डायग्राम में देखिए 0.6 पे जो लेंथ ऑफ द सिलेंडर है वो मैक्सिमम है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर है वो मैक्सिमम है, और 0.8 पे मिनिमम है। और बीच में आप जो देख रहे हैं एम ए बाई सी, दैट इज व्हाट, दिस इज द एवरेज, दिस इज द एवरेज वैल्यू। ओके, इतना तक कंप्लीट हो गया, इतना समझ में आ गया। सो दोनों केस में हमने 0.6 पे निकाल लिया और 0.8 पे निकाल लिया। ठीक है, इतना इक्वेशन कंप्लीट कर लिया आपने। कौस्तुभ, यस सर, हो गया। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है बेटे, Yes, sir. इनपुट दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, डीएम दिया हुआ है, मेजरिंग हेड डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 mm दिया हुआ है। ओके, डीएम दिया हुआ है, और डीसी दिया हुआ है। डीसी कितना दिया हुआ है, डीसी कितना दिया है, 0.5 mm। कितना दिया है, डीसी कितना दिया है, 0.5 mm, और डीएम कितना दिया है, 1 mm। ओके, यस सर। सो क्या करेंगे हम लोग, अभी क्या करेंगे बताइए। कड़ी बना दो, कड़ी रात में भी काम आएगी, रोटी का खाने में। अभी क्या करेंगे, अभी हमें रेंज निकालना है। पहला हमें क्वेश्चन देखिए, हमें रेंज निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज। और वो रेंज कैसे निकालेंगे बच्चे, वो रेंज कैसे निकालेंगे, यही इसी दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन सोल्व करिए, और क्या निकलेगा हमको, एल मैक्स और एल मिनिमम का डिफरेंस निकलेगा। एल मैक्स और एल मिनिमम, बाकी सब टर्म कैंसिल हो जाएंगे। एल मैक्सिमम माइनस एल मिनिमम का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है। सो दैट विल बी द रेंज फॉर अस, दैट विल बी द रेंज फॉर अस। यू आर गेटिंग और नॉट? सॉल्व करिए। 0.6 हो गया, 0.6 इक्वल टू 1.1, 0.5, दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों को क्या करेंगे भैया, घटाइए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो हमारा डिफरेंस निकलेगा एल मैक्सिमम माइनस एल मिनिमम में। अब देखिए 1 कट जाएगा, अब देखिए 1.1 कैंसिल हो जाएगा, 0.5 0.5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब वो वैल्यू पुट करने के बाद अब डीएम का वैल्यू पुट करिए, वहां डीसी का वैल्यू पुट करिए, तो हमें निकलेगा एल मैक्सिमम माइनस एल मिनिमम के टर्म में, तो वही होगा रेंज। दैट इज व्हाट, वन आंसर इज क्लियर। अब इसे यू आर गेटिंग और नॉट? सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि पूछिए। जो सर एम की वैल्यू हमेशा पाई डीएल रहती है? हाँ बेटे, हमेशा पाई डीएल होगी, हमेशा तो मतलब हमें एम की वैल्यू पाई बाई 4 डी स्क्वायर हमेशा उसकी वैल्यू होगी, मेजरिंग ओरिफिस डायमीटर, सॉरी कंट्रोल ओरिफिस डायमीटर की। यस टेल मी। तो सर फिर इसमें हम मतलब ये तो कट नहीं जाएगा? कैसे कटेगा बेटे, मतलब एल 4l/d नहीं बच जाएगा बेटे? इसकी कैसे वैल्यू? कैसे कैसे बचेगा? आप देखिए, मैं खुद ही सोल्व कर रहा हूँ, आप खुद देखिए। मैंने क्या बोला आपको कि 0.6 इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.5। यहाँ क्या हो गया, पाई डीएम है, आप काट नहीं सकते हैं, पाई डीएम एल मैक्सिमम। तो यहाँ से क्या किया हमने, पाई इंटू डीएम की वैल्यू कितना दिया है, 1 mm इंटू एल मैक्सिमम। ओके, और अपॉन कितना दिया हुआ है बेटे, पाई बाई 4, अपन क्या दिया है, पाई बाई 4। डीसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.5 का स्क्वायर। डीसी की वैल्यू एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, 0.8 इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.5, राइट है। उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई इंटू डीएम की वैल्यू दिया है 1 इंटू एल मिनिमम अपॉन पाई बाई 4। डीसी का वैल्यू क्या दिया है, 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए, जब हम दोनों का डिफरेंस करेंगे बच्चे, दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट करिएगा, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करिएगा। We are going to subtract equation 1 from equation 2. What will be the result? The result will be the 1.1 cancel out, right? 0.5 yes, 0.5 cancel out, because this is the multiple of whole things. Okay, and what is the difference between 0.6 0.8? तो क्या हो जाएगा, 0.6 minus 0.8, यहाँ हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा ना है। उसके बाद आप देखिए इस साइड में क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए पाई बाई 4, नीचे का डीसी डीसी कैंसिल हो जाएगा बच्चे। आप देखिए नीचे का डीसी डीसी कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 डीसी में करके देखता हूं। हाँ, पाई बाई 4 डीसी। कौस्तुभ yes sir, you have completed? What is the value of L max minus L minimum? sir 2 मिनट बस। Okay, do it. Rishabh Kumar, yes sir, you are doing or you are simply sleeping? सर फोन भी कर रहे सर।
टेल मी द वैल्यू ऑफ अरे एल सर। मैक्सिमम, एल मैक्सिमम माइनस एल मिनिमम। हाँ सर, निकाल दो। प्रिया सोलोनी, प्रिया सलोनी, अब क्या होगा इसमें? पाई पाई भी कैंसिल हो गया, सो एल मैक्सिमम माइनस एल मिनिमम, और ये मैक्सिमम एल मिनिमम का वैल्यू कितना हो गया? सर 1 मिनट, बस 1 मिनट। यस हिमांशु, 0.2 आप सब्सट्रैक्ट करिए। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, जो हमारे बचे हुए हैं, वो क्या बचे हुए हैं, उसी को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे थे ना। सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, उसको ही सॉल्व करना है। सर ये 0.14 सर ये आ रहा है कि 1 मिनट सर, हमें एल मैक्स माइनस एल मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। हाँ, एल मैक्सिमम रेंज तभी तो निकालेंगे ना। फर्स्ट में क्या कर, रेंज ऑफ अच्छा। लीनियर मेजरमेंट। व्हाट इज द रेंज ऑफ लीनियर मेजरमेंट्स? वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज लीनियर ऑफ बस सर 2 मेजरमेंट मिनट का का काम है। 2 इंटू 2 से 2 भी उड़ जाएगा। डीएम की वैल्यू डीएम की वैल्यू 1 दी है। हाँ, डीएम की वैल्यू 1 दिया हुआ है, एंड डीसी की वैल्यू दिया हुआ है 0.5। 0.5 ये भी कट जाएगा। एल मैक्स माइनस एल मिनिमम, ये 0.5 यहाँ जाएगा। सर एल मैक्स माइनस एल मिनिमम की वैल्यू 0.05 आ रही है। नहीं नहीं बेटे, 0.025 mm, 0.025। सर 0.03 आ रही है। हाँ चलो ठीक है, नियर बाई है, इट इज नियर बाई, नॉट बैड। सर 0.3 मेरा भी आया, मतलब 0.03 मेरा नो भी आया। नॉट ए बिग डील। 0.03 आ रहा है ना? यस सर। ओके, लेट इट बी। ओके, गो अहेड। तो 0.05 आ रहा है। Now the question has been asked to us. The question has been asked to us. That is what we have to find out, the overall magnification. And what I said, the overall magnification is what? I already said you. What is overall magnification? Overall magnification is what? Overall magnification is. I already told you. I already showed you here. Here you will see. The overall magnification is the multiplication of these three terms. That is what? That is what? Sensitivity of the pressure measuring device, dp by dm, pneumatic sensitivity, and dm by dl, rate of change of MOCL. Okay, so सबसे पहले आप आइए, we have to find out indicator sensitivity. We have to find out the indicator sensitivity. So what is the value of indicator sensitivity? dr by dp, indicator sensitivity, or you can say sensitivity of the pressure measuring device. सबसे पहले निकालिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे? sensitivity of the pressure measuring device. उसी को बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिकेटर सेंसिटिविटी। ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर सेंसिटिविटी। सो विच इज इक्वल टू dr by dp, विच इज इक्वल टू dr by dp। सो dr by dp कैसे निकालेंगे बताइए आप? dr by dp, हाउ डू वी फाइंड आउट dr by dp? आपके पास दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चंस में आपके दिया हुआ है, द इंडिकेटर सेंसिटिविटी, यस 30 mm पर 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा? 30, देखिए 30 mm पर 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको हमें क्या लिखना होगा? 30 इंटू क्या हो जाएगा? 30 mm है ना? 30 mm है, और हमें इसको किसमें बदलना है? मीटर में बदलना है। तो क्या करेंगे? 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और नीचे में क्या कर रहा है? 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 किलो न्यूटन, तो किलो को हटाएंगे, 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। यू गॉट इट? 30 into 10 to 30 मल्टीप्लाई करेंगे ना? हाँ सर, वो जो मीटर स्क्वायर वो ऊपर चला जाएगा ना बेटे? हमने क्या बताया? हमने बताया कि 30 mm पर 1 किलो, पर का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाई 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने क्या बताया कि 30 चूंकि mm में है, उसको हमें बदलना है मीटर में। तो हमने क्या कर दिया? 30 into 10 to the power 3 मल्टीप्लाई कर देंगे।
-3। हाँ, 10 to the power -3 -3, होगा ना हाँ हाँ -3 होगा, वो गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। और नीचे 1000 बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, 1 किलो न्यूटन था, उसको न्यूटन में बदल देंगे तो 1000 बच जाएगा। ओके, सो अब क्या हो जाएगा, 30 × 10 to the power -6 हो जाएगा, 30 × 10 to the power -6 मीटर Yes, sir. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। गॉट इट? इंडिकेटर सर इसको ये भी तो सेंसिटिविटी, लिख सकते हैं 30 × 10 की पावर -6 हाँ मीटर 30, क्यूब पर न्यूटन। हाँ लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। गॉट इट? गो फॉर Yes, sir. फाइंडिंग आउट। अब सर ये dr/dp की वैल्यू है। ये बच्चे वैल्यू है dr/dp की, जो जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। सेंसिटिविटी ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, इसी को बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर सेंसिटिविटी। जो चीजें हमें इंडिकेट होती है उसकी सेंसिटिविटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब तीसरे में आइए, दूसरा में आइए। सर ये क्वेश्चन में दिया होता है हमेशा। हाँ हाँ दिया रहेगा, ये इसके बिना निकाल ही नहीं सकते हैं। दूसरे में आइए, Yes, sir. दूसरे में क्या निकालेंगे, मेजरिंग हेड सेंसिटिविटी। क्या निकालेंगे हम लोग, मेजरिंग हेड सेंसिटिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेजरिंग हेड सेंसिटिविटी, dm/dl, मेजरिंग हेड सेंसिटिविटी। इसी को बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ m with l। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मेजरिंग हेड सेंसिटिविटी बोलते हैं। हिमांशु, यू आर गेटिंग और नॉट, यू आर डूइंग और नॉट? यस सर, यस सर, आई एम डूइंग। सो मेजरिंग हेड निकालेंगे, मेजरिंग हेड इज व्हाट, d/dl ऑफ m। हमेशा ध्यान रखिएगा कि d मतलब समझ रहे हैं ना, हमने क्या बताया था आपको, d/dl ऑफ m। अब देखिए हमने क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू l। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे m को विथ रेस्पेक्ट टू किसके, l के रेस्पेक्ट से। ओके, सो इसी को हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरिंग हेड सेंसिटिविटी। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, this is equal to pi dm, this is equal to pi dm, this is equal to pi dm। और dm की सर वैल्यू ये दिया पाई डी नहीं होगा। हाँ पाई डी होता है, हमेशा पाई डी होता है, हमेशा पाई डी होता है। आप देखिए नीचे आप देखे होंगे, आपने नीचे देखा होगा, लिखा है। नीचे लिखा हुआ है ना, dm/dl इज इक्वल टू पाई डी, हमेशा पाई डी होता है, पाई डीएल होता है एक्चुअली, लेकिन वो क्या हो जाता है, पाई डीएल जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे एल के रेस्पेक्ट में तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसीलिए हमारे के पास क्या बचता है, पाई डी। ठीक है, पाई डीएम, चूंकि हम मेजरिंग हेड की बात कर रहे हैं तो पाई डीएम, तो डीएम की वैल्यू निकाला हुआ है तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? सर यहाँ पे डी जो आएगा वो मेजरिंग हेड का डायमीटर आएगा। हाँ डीएम ठीक है आएगा, सर, 1 हमेशा mm ध्यान रखिए क्योंकि हम कहाँ 1 आ निकाल रहे हैं। जाएगा। आप देखिए इस डायग्राम को देखिए, क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम को देखो अच्छे, इस डायग्राम को देखिए आप, ये देखिए डी कौन सा है, ये देखिए ये डायमीटर है मेजरिंग, ये किसका डायमीटर है, नोजल का डायमीटर है। और क्लियरेंस किससे, जिस सरफेस को हम मेजर कर रहे हैं उस सरफेस से नोजल की कितनी दूरी है, सेपरेशन बिटवीन द नोजल, इसीलिए तो हम लोग निकल रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एम। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। जो नोजल का डायमीटर होगा वो सेपरेशन के चलते वैरी करेगा, तो वो कितना हो जाएगा उसी के, इसीलिए हमेशा वो मेजरिंग हेड की बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है, पाई एक्चुअली में होता है ये, जब अगर बात करेंगे तो ये होता है पाई डी एल, हमने बताया था। यहाँ देखिए भी आप डेरिवेशंस में देखिए, एक्चुअल में ये होता है, जो होता है कितना होता है, पाई डी एल, देख रहे हैं ना, पाई डी एल। लेकिन जब हम एम का वैल्यू कितना होता है, पाई डी एल होता है। हमने क्या बताया था, मेजरिंग हेड का डायमीटर कितना था, पाई डी एल होता है। जब डिफरेंशिएट करेंगे एल के रेस्पेक्ट में तो एल बिकम 1 हो जाएगा, है? तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, पाई इंटू डी, और पाई इंटू डी, पाई इंटू डीएम बचेगा। तो डीएम डी की वैल्यू 1 mm है, 1 mm है, तो पाई इंटू 1 × 10⁻³ मीटर हो गया। ठीक है, 3.14 mm। हाँ इसको मीटर में बदल लिया हमने। ठीक है, अब आइए तीसरा निकालिए। अब हमें सीधे निकालना है क्या, अब हमें क्या निकालना है, न्यूमेटिक सेंसिटिविटी। तीसरा क्या निकालना है हमें, dp/dm, स्मॉल p, ध्यान रखिएगा स्मॉल p, और स्मॉल p किसका प्रेशर है, प्रेशर बिटवीन दीज टू हेड्स, किसके बीच का प्रेशर, इनलेट और आउटलेट के बीच का प्रेशर, मतलब कंट्रोल ओरिफिस से और मेजरिंग ओरिफिस के बीच का जो प्रेशर है स्मॉल p है। तो यहाँ क्या निकालेंगे, न्यूमेटिक सेंसिटिविटी dp/dm, और ये इसका वैल्यू देखिए निकाला हुआ है हमने, जीरा दे दो। देखिए यहाँ
यहाँ देखिए बच्चे कैसे P वैरी करता है M के साथ। सी हियर हाउ P वैरीज टू M। हमने यहाँ से देखिए डिफरेंशिएशन किया है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस में। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में क्या किया है, ए कांस्टेंट था तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा कांस्टेंट हो गया तो 0 बाहर हो गया, बच गया हमारे पास माइनस Zero b हो बाई गया। सी टू पी। तो आप देखिए ये निकाला है हमने dp बाई dm की जो वैल्यू है, dp बाई dm की वैल्यू कितनी है माइनस 0.40 p बाई m में dp बाई dm। तो इस डायरेक्ट रखिए माइनस 0.40 p बाई m में। और m का वैल्यू समझ गए, m का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, m का वैल्यू बताया मैंने, m बीच वाला मतलब 0.6 और 0.8 के बीच में जो मीन निकला 0.7, तो वही 0.7 का जब वर्टिकल लाइन उसके ड्रा करेंगे तो इस डायग्राम में देखिए ये MA है, ये बीच वाला देख रहे हैं ना जो ये दिस इज MA है, दिस इज MA दैट स्टार्टेड फ्रॉम द 0.7 दैट इज द मीन वैल्यू। तो क्या हो गया 0.4 P अपॉन M एवरेज। क्लियर है या नहीं है? और एवरेज सर कैसे वो निकालना? 0.40 कैसे आया ये नहीं समझ में आया। 0 पॉइंट, हाँ देखो बेटे ये यहाँ से आया है, यहाँ देखिए ये डेरिवेशन से हमने निकाला है। हमने क्या किया था, यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको दिखना चाहिए, ये दिख रहा है आपको, डायग्राम दिख रहा है ना, यहाँ देखिए यस सर। हमने क्या किया है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में P कैसे वैरी कर रहा है M को वैरी करने से। तो यहाँ हमने क्या किया कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को dp बाई dm देख रहे हैं, स्मॉल p को हम कर रहे हैं ना, तो Yes, स्मॉल sir. p को कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल P चला गया, m वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट के साथ तो 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा dp बाई dm जब डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या बच गया माइनस b बाई सी इंटू पी। ओके, this equation become minus b by c upon sorry minus b by c into p। ओके, हमने क्या कर दिया, अब हमें तो वैल्यू पता था कि ये मीन की वैल्यू निकाल रहे थे, तो हमने क्या किया 0.7 इज इक्वल टू 0.7 किसका मीन वैल्यू, ओके, इज इक्वल टू 1.10 माइनस b इंटू एम ए बाई सी। तो यहाँ से b बाई सी का जो वैल्यू निकला बच्चे वो क्या निकला 0.40 अपॉन एम ए। तो हमने यहाँ निकाल लिया dp बाई dm इज इक्वल टू माइनस b बाई सी इंटू पी, और b बाई सी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। b बाई सी का वैल्यू कितना निकाले हैं 0.40 m में, तो उसको रिप्लेस कर दिया तो 0.40 p अपॉन m में ये हो गया। मतलब क्या हो गया, यहाँ सेंसिटिविटी हमेशा याद रखिए, डायरेक्टली रिलेटेड टू द कैपिटल P एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज। मतलब मेजरिंग हेड्स, जो मेजरिंग हेड्स का डायमीटर है तो उसके एवरेज वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है कैपिटल P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है कि नहीं है? यस सर, समझ में आ गया। हाँ, तो अब ये वैल्यू हमने क्या कर दिया, सीधे देखिए 0.40 और कैपिटल P की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, नहीं दिया हुआ है, कैपिटल P की वैल्यू दिया हुआ है नहीं दी है। और एम एवरेज की वैल्यू, एम एवरेज की अब ये देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एम एवरेज की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चे, एम एवरेज की वैल्यू यहाँ देखिए, ये जो देख रहे हैं डायग्राम ये थोड़ी सी गलती है बेटे, यहाँ सुधार लेना आप लोग। यहाँ देखिए आप, हमने क्या बताया था कि हमने एम एवरेज की वैल्यू क्या होता है, किसी भी वैल्यू का एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को सम करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं, या जितने नंबर ऑफ डेटा होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, उतने से तो हमें एवरेज निकल जाता है। तो यहाँ देखिए हमें एम ए की वैल्यू निकाला है, हमने क्या निकाला है 1/2 mx प्लस एम एन। एम एक्स क्या है मैक्सिमम वैल्यू और एम एन क्या है इनिशियल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जिसको बोलिए हैं। तो हम ये जो देख रहे हैं एम ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम एक्स प्लस एम एन। क्लियर है, एम एक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू, एम एन इज द मिनिमम वैल्यू। ओके, तो यहाँ से हमने निकाल लिया एम एक्स माइनस एम एन, यहाँ से देख रहे हैं एम एक्स माइनस एम एन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम एन। तो अब सीधे आइए न्यूमेरिकल में, कौस्तुभ, शुभम चौनाल, यस सर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर, वो थोड़ा थोड़ा बेटे स्लाइड नेटवर्क इशू हो रहा है सर, थोड़ा बहुत। चलो कोई और दिक्कत होगी तो आप पूछना, बाद में भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अभी क्या करिएगा, जब दोबारा बनाइएगा जो बोल रहा हूँ मैं वो लिखिए, और जब दोबारा बनाएंगे आप तो दोबारा बनाने के समय आप स्लाइड खोल के रखेंगे, तो आपको जहां जहां से फॉर्मूला हम लोग कर रहे हैं लिख रहे हैं वो आपको रिमेम्बर होगा, ठीक है, वो देख पाएंगे। ओके, यस कौस्तुभ। यस सर। हाँ, so pneumatic sensitivity dp by dm is equal to what 0.4 p upon m एवरेज, ठीक है। अब 0.4 और प्रेशर कितना दिया हुआ है बेटे,
बताइए प्रेशर कितना दिया हुआ है, कैपिटल पी का वैल्यू सर कितना दिया हुआ प्रेशर है? सर प्रेशर तो पता नहीं दिया शायद। क्या नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से। सर क्या 1 दिया है शायद, वो 1 किलो न्यूटन पर मीटर no स्क्वायर। no man, you are not reading question properly. See here, overall magnification of the comparator is the total pressure behind control orifice. कहाँ कर रहा है, total pressure behind control orifice, that is control orifice is what, see this diagram, see this diagram, control orifice is what, see this diagram, see this is control orifice. This is what, control orifice. So this become the capital P, pressure. So before control orifice the pressure become 3 bar, 3 bar नहीं दिया हुआ है, we already दिया है have सर। 3 bar. Okay, so what will सर इसमें कंट्रोल ओरिफिस ऊपर वाला है। कंट्रोल ओरिफिस ऊपर वाला है, बार बार बता रहा हूँ बेटे, ये है C और ये है M. ओके, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मेजरिंग ओरिफिस, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ कंट्रोल ओरिफिस. सो कंट्रोल ओरिफिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कंट्रोल ओरिफिस का हमेशा ही जो एरिया ऑफ कंट्रोल ओरिफिस होगा वो क्या होगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और मेजरिंग हेड का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई डी एल, पाई डी एम, समझ रहे ना, पाई डी एम एल. ओके, सो वन बिकम द एल मैक्सिमम, वन बिकम द एल मिनिमम. सो पाई डी एल हमेशा याद रखिएगा. ओके ओके, Yes, sir. so put this value 0.4 into 300. अब लिख सकते हैं ना आप, 0 into बार में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 to the power 5 हो जाएगा. तो 0.4 into 3 into 10 to the power 5. बार को Yes, हम sir. बताएंगे एमएम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 into 3 into 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर है, अपॉन यस सर। अपॉन एम एवरेज. और एम एवरेज के लिए हमने क्या वैल्यू बताया था बच्चे, एम एवरेज के लिए हमने क्या वैल्यू बताया था, mx पे समेंट बाई 2। हाँ लिखिए, एम एवरेज इज इक्वल टू पाई डीएम एल का वैल्यू क्यों चेंज करेंगे ना, पाई डीएल होता है, आपको पता है एम की वैल्यू कितनी होती है, एम एवरेज की चाहे नॉर्मल एम की वैल्यू क्या होती है, पाई डीएल, एम की वैल्यू होती है ना पाई डीएल. गॉट इट. तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, पाई डीएल जब होता है तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे L max। पाई डीएम और एल मैक्सिमम प्लस एल मिनिमम, एल मैक्सिमम प्लस एल मिनिमम अपॉन 2. यही हो जाएगा ना एवरेज का वैल्यू. नहीं समझ में आ रहा है, सर आ गया समझ। एम एवरेज में हमने सर क्या एक बार किया? दोबारा बता दो। हाँ देखो ध्यान से देखिए आप, एम एवरेज का वैल्यू हमने क्या बताया था, हम आपको पता है एम की वैल्यू आपको पता है कि एम की वैल्यू हमेशा क्या होता है, एम का वैल्यू हमेशा मेजरिंग हेड एरिया होता है जो पाई डी एल होता है. और हम बात कर रहे हैं चूंकि एवरेज का, तो हमारा क्या हो जाएगा पाई डी एम, ठीक है, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, एल मैक्सिमम प्लस एल मिनिमम अपॉन 2, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे. ठीक है, तो अब आप सीधे पुट करिए, आप यस सीधे सर। पुट करिए. अब क्या हो जाएगा, एल मैक्सिमम एल मिनिमम बाई 2, तो हम निकाल चुके हैं, चूंकि एल मैक्सिमम अपन एल मैक्सिमम की कितनी वैल्यू है, एल मिनिमम की कितनी वैल्यू है, उसको पुट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से. क्लियर है या नहीं है? यस सर बिल्कुल। इसी इक्वेशन से जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए, वहां से एल मैक्सिमम और एल मिनिमम का वैल्यू निकल गया ना, एल मैक्सिमम का कितना वैल्यू आया, एल मिनिमम का कितना वैल्यू आया, तो वही क्या किया, उस वैल्यू को पुट कर दिया हमने. तो पुट करने के बाद हमें सीधे बताइए क्या आ रहा है वैल्यू आपका, सर dp बाई dm का ना। हाँ डीपी बाई डी एम का वैल्यू बताइए. और फिर इसके सर बाद 2 बस, मिनट बस। हाँ इसके बाद केवल एक चीज करना रहेगा, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स, इंडिकेटर सेंसिटिविटी, मेजरिंग हेड सेंसिटिविटी एंड न्यूमेटिक सेंसिटिविटी. So the multiplication of these three will be giving the magnification of overall magnification of the pneumatic comparator. Priya Saloni, Priya, are you here? हिमांशु, Yes, sir. समझ में आ रहा है आपको? यस सर समझ में आ रहा है। ओके. अंशुल वर्मा, अंशुल वर्मा, you are getting? Yes, sir. हाँ अभी घर पे जाके फिर से सॉल्व करिएगा स्लाइड खोलने के बाद. ओके, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है. वट एवर प्रॉब्लम यू आर गेटिंग ड्यूरिंग न्यूमेरिकल सॉल्व, सो आई विल लेट यू नो. ओके प्रिया. Yes, sir.
You are not doing? सर कर रहे हैं सर वो। देखो बेटा आ गया तो 12.5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे ये। सर ये बहुत ज्यादा आ रहा है नेगेटिव कितना? में। कोई दिक्कत नहीं, बताओ। सर माइनस 8.85 into 10 to the power 5. Okay. So now find out the overall magnification. Overall magnification is the multiplication of indicator sensitivity, measuring head sensitivity and the pneumatic sensitivity. So अभी हाँ एक चीज और बताएंगे आपको टाइम बचाने के लिए। आप जो न्यूमेटिक सेंसिटिविटी सर इसमें डीएम को एमएम में ही लेना है ना? हाँ सब एमएम में, नहीं सब मीटर में लेना है बेटे, मीटर में लेना है भाई, सब मीटर में लेना है। अच्छा मीटर में लेना है, सारे डायमेंशंस इसमें मीटर में लेना है। तो आपका सर मैंने एमएम में लिया, इससे ज्यादा आ रहा है। मेरे जो क्वेश्चन मेरे कितने आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ, 2400 अपॉन पाई इंटू 10 to the power 9 न्यूटन मीटर 4, इतने आने चाहिए आपके। सर एक बार इसका सॉल्यूशन भी भेज देना ताकि मैं थोड़ा नहीं वो बेटे वो स्लाइड में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? वो स्लाइड में मैं इसको रख दूंगा, इसीलिए मैं देरी कर रहा था ना, आपको स्लाइड इसीलिए नहीं भेजा हूँ, आपको स्लाइड इसीलिए मैंने नहीं भेजा है कि यही सब चीजें ऐड कर रहा हूँ स्लाइड में, ताकि क्लासेस तो इस बार हुई नहीं तो कोई नहीं सर, कोई नहीं। हाँ तो आज मतलब बाई इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग, कल तो क्लास है ना, क्लास से पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है? यस सर। अब ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या निकालोगे बेटे? ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीस थ्री। व्हाट आर? इंडिकेटर सेंसिटिविटी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इंडिकेटर सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं, इंडिकेटर सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। इंडिकेटर सेंसिटिविटी इज नथिंग बट दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। दिस इज व्हाट? सेंसिटिविटी, मतलब कि जो इंडिकेट कर रहा है, समझ रहे ना? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस का जो सेंसिटिविटी है उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर सेंसिटिविटी। डीपी बाई डीएल को ही न्यूमेटिक सेंसिटिविटी बोलते हैं, और मेजरिंग हेड सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं हम लोग? डीएम बाई डीएल को। किसको बोलते हैं हम लोग? डीएम बाई डीएल को। मिस्टर ऋषभ कुमार, Yes sir. you are doing Yes, or not? sir. Yes sir. I'm damn sure that you are not doing. सर हम दिखा देंगे। हैं? सर दिखा देंगे क्लास खत्म होने पर। अच्छा, I'm not Yes, interested. sir. I'm not interested. Okay. हाँ हिमांशु बताओ कितना हुआ? हिमांशु सर अभी करना है? सर न्यूमेटिक सेंसिटिविटी की वैल्यू 1273 आ रहा है। 1273 आ रहा है, पता नहीं Yes, बेटे, sir. हम पूरा सॉल्व नहीं किया, हमने सॉल्व किया है तो हमको आया है 2400 अपॉन पाई इंटू 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर 4। ओके, यही वैल्यू पुट करिए, जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ ना, लिख लीजिए 2400 बाई पाई इंटू 10 to the power, प्लीज राइट एवरीवन and do solve when you are doing, okay? 2400 upon pi into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर 4, न्यूटन पर मीटर 4। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाई डीएम, और डी की वैल्यू हमने क्या कर दिया, डीएम की वैल्यू आपको पता है 1 है, डीएम की वैल्यू 1 है, तो 1 किस में है? एमएम में है, तो सीधे क्या करेंगे 1 into 10 to the power -3 यहीं लिख देंगे, ठीक है? और जो एल मिनिमम और एल मैक्सिमम की वैल्यू आएगी वो भी किस में आएगी? एमएम में आएगी, तो उन दोनों के लिए क्या लिख देंगे, फिर 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आएगा आपका 2400 बाई पाई इंटू 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर 4, ठीक है? अब ओवरऑल सेंसिटिविटी के बारे में आइए। ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ dr बाई dp, मल्टीप्लिकेशन ऑफ dp बाई dm एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ dm बाई dl, राइट? गॉट इट? Got it or not? यस सर। हाँ, तो अब कितना हो गया? dr बाई dp का हमारा वैल्यू आया है पाई इंटू 10 to the power -3 आया है। dr बाई dp का वैल्यू आया है हमारा, सॉरी dr बाई dp का वैल्यू कितना आया है? पाई इंटू 10 to the power 3, पाई इंटू 10 to the power 3 आया है। dp सॉरी इसका लिखिए 30 इंटू 10 सब -3 होगा ना? नहीं बेटे, dr बाई dp का वैल्यू हमारा कितना आया? 30 इंटू 10 to the power -6, 30 इंटू 10 to the power -6 न्यूटन पर मीटर क्यूब, सॉरी मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? 30 इंटू 10 to the power 6
मीटर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्लियर, इनटू पाई इंटू 10 टू द पावर -3, पाई इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, इंटू 30 इंटू 24 अपॉन 2400 अपॉन पाई इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर 4। आप यहाँ देखेंगे सारे के सारे यूनिट यहाँ कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। अगर कैंसिल नहीं होता है इसका मतलब आपका गलती है, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन होता है मैग्निफिकेशन में कोई यूनिट नहीं होती है। मिस्टर जतिन यस सर। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर, मैग्निफिकेशन में कोई यूनिट नहीं होती है। हाँ, तो मैग्निफिकेशन में कोई यूनिट नहीं होगी, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे जितने यूनिट के साथ लिख के देखिएगा, यूनिट जितने भी आएंगे वो सारे यूनिट यहाँ क्या हो जाएंगे, इक्वली कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दैट सो कितना आ रहा है बताओ, जितना वैल्यू हमने बोला इसको सॉल्व करके बताओ। कौस्तुभ, हिमांशु, सर 1.19 into 10 की पावर -4। ना मैग्निफिकेशन आपने सुना है कि पॉइंट पे कभी मैग्निफिकेशन आता है? मैग्निफिकेशन सुने होंगे, x10, x20, x30, x50। सर dp by dm की वैल्यू क्या है? dp by dm देखिए हमने क्या बताया था, पहले dr by dp का वैल्यू रखिए। dr by dp का वैल्यू हमने बताया था 30 × 10⁻⁻6 मीटर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने बताया dm by dl का वैल्यू, dm by dl का वैल्यू रखिए पाई इंटू 10⁻³ मीटर। उसके बाद न्यूमेटिक सेंसिटिविटी का वैल्यू रखिए, जो dm by dl है, जो dp by dm है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400 अपॉन पाई इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹। गॉट इट or not? Yes sir. So how 10 what to is the the value power of 9 नीचे है magnification? ऊपर है? 10⁻⁹ है बेटे, ऊपर है। 2400 अपॉन पाई इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर 4। ठीक है सर। ठीक है बेटे। यस सर। सो ठीक लगा न्यूमेरिकल करके? एक बार फिर आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, इसको खुद से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन यू हैव एंड स्लाइड ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड। सेकेंड यूनिट का स्लाइड आपको शेयर कर चुका हूं मैं, ओके ठीक है। Yes, तो sir. उस स्लाइड्स में डेरिवेशंस Yes, को sir. देख के एक बार सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है। दैट विल बी मार्क्ड एज 12.5 in examination. So in worst condition, if you are doing well, nobody will write 11 marks, less than 11 marks for this. Okay, so what value you got? What value you got? What value you got? Write down. This value will be 72,000. Okay, the value overall magnification value will be 72,000. Got it? आप सॉल्व करके देखना 72,000 इसके वैल्यू Yes sir. ओके। सो टुमारो सर Yes, sir. Yes, sir. टुमारो 71। हाँ 72,000। सर मेरा आ रहा है सर 71 हाँ ठीक है, 986। हाँ बिल्कुल सही है। वो क्या होता है पॉइंट में 4 पॉइंट ऑफ डेसिमल 3 पॉइंट ऑफ डेसिमल की वजह से वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। नॉट बैड, वो गलत नहीं है, सही है। ओके सर सर 1 बजे से आज सर की क्लास है शायद। ठीक है बच्चे, आप आई एम गोइंग टू डिसकंटिन्यू माय लेक्चर। ओके ओके सर। ओके meet you tomorrow in the same time. Okay, Yes, sir. thank you all. Once again you must have to go through this numerical, and tomorrow I will ask again. Okay, thank you. Okay sir. थैंक यू सर।